हेलो। तो आज हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के मेंस के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंसेस ओशन करंट्स? डिस्क्राइब देयर रोल इन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब हमें ये इसमें क्या करना है कि हमें ये पता लगाना है कि ओशन करंट्स ओशन करंट्स को कौन कौन से फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं, और उस ओशन करंट्स का जो है वो फिशिंग इंडस्ट्री पे क्या रोल है। ओशन currents are the continuous, predictable, directional movement of sea water like river flow in ocean. They move in two directions, horizontally and vertically. It is a massive movement of ocean water and is caused and influenced by various forces. The forces that influence the ocean currents are two types of forces that influence the ocean currents are primary forces and secondary forces. So what are primary forces? The primary forces are: first is temperature. Heating by solar energy causes the water to expand. The sun provides more heat to equatorial and tropical regions than polar regions. Warm equatorial waters therefore move upward toward polar, while the heavier cold water of polar areas move toward equator. Temperature decreases with depth as sun rays cannot penetrate deep oceanic water, and the difference in temperature of ocean water causes ocean currents. So दूसरा दूसरा फोर्स क्या है? पहला तो हो गया टेम्परेचर प्राइमरी फोर्स पे, दूसरा प्राइमरी फोर्स क्या है? Coriolis force. Coriolis force bends the direction of surface currents to right in the northern hemisphere and left in southern hemisphere. Due to Coriolis force, currents flow in a clockwise direction in northern hemisphere and in anti-clockwise direction in southern hemisphere. और तीसरा पॉइंट क्या है? Atmospheric pressure and planetary winds. Air pressure on oceanic water causes ocean currents through density variation. The water moves as surface current from the areas of high water level, means low pressure area, to low water level areas, high pressure areas. Planetary winds influence the origin of ocean currents. Most ocean currents follow direction of prevailing winds. Example: Gulf Stream in Antarctica moves in northeastern direction, which influences under the influence of westerlies. And what are the secondary forces? देखेंगे अब secondary forces कौन कौन सी होती है। सबसे पहले है difference in water density. It affects the vertical mobility of ocean currents, as denser water tends to sink while relatively lighter water tends to rise. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? डिफरेंस इन सैलिनिटी. एरियाज विद हायर सैलिनिटी विल हैव अ ग्रेटर डेंसिटी देन द एरिया विद लोअर सैलिनिटी. द डेंसर वाटर सिंक्स एंड लेस saline वाटर मूव्स टुवर्ड ग्रेटर saline वाटर एज सरफेस करंट्स. अब दूसरा देखिए, रोल ऑफ ओशन करंट्स इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. Ocean currents have given rise to fish-rich regions, the place where warm and cold current meet have abundant growth of plankton, which is the food for fish. These areas are the best fishing grounds in the world. The confluence example: the confluence of cold current Oyashio and warm current Kuroshio near Japan has given rise to a rich fishing ground. Other prominent fishing grounds in the world include Great Bank of Newfoundland, where the North Atlantic drift meet the cold Labrador Current, and the sea around Iceland, where the North Atlantic drift meets East Greenland Current. ठीक है, तो अब इसमें हम इसके मेन पॉइंट्स बनाएंगे और फिर साथ साथ इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो अंडरलाइन करेंगे.
सबसे पहले इसको दोबारा से देखेंगे एक बार, इसको समझेंगे लाइन बाय लाइन, तो उसके बाद इसके आगे का वो करते हैं। सबसे पहले ओशन करंट्स क्या होते हैं? ओशन करंट्स जो होते हैं कंटिन्यूस, प्रिडिक्टेबल, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर, मतलब डायरेक्शन के साथ होगी इसकी सी मूवमेंट, लाइक द रिवर फ्लो इन द ओशन, मतलब ऐसे मान लो कि मतलब कोई रिवर फ्लो होने लग रही है ओशन में। दे मूव इन टू डायरेक्शन मूव होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली। इट इज अ मैसिव मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर एंड इज caused and influenced by various forces, बहुत सारे फोर्सेस इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फोर्सेस जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट्स को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्सेस। प्राइमरी फोर्सेस क्या क्या है? सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है? हीटिंग बाय सोलर एनर्जी causes the water to expand, मतलब हीटिंग से क्या होता है, जो कि सोलर एनर्जी से आते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वाटर एक्सपैंड होगा। सन प्रोवाइड मोर हीट टू इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स देन पोलर रीजन, मतलब सन जो हीट प्रोवाइड करता है वो ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन्स में ज़्यादा होती है, किसके मुकाबले? पोलर रीजन्स के मुकाबले। वो ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन्स में ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो सन प्रोवाइड मोर हीट टू इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन देन पोलर रीजन। जो वार्म इक्वेटोरियल वाटर होते हैं वो टुवर्ड पोल मूव करते हैं, जो हैवी कोल्ड वाटर होते हैं और पोलर एरिया इसलिए वो टुवर्ड इक्वेटर मूव करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद डेप्थ एज सन रेज कैन नॉट पेनिट्रेट डीप ओशनिक वाटर, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता रहता है डेप्थ के साथ साथ, एज सन रेज जो होती है वो पेनिट्रेट नहीं हो सकती डीप ओशनिक वाटर में। और द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर कॉजेज द ओशन करंट, और जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर वो कॉज करता है ओशन करंट्स को, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर क्या है? कोरिलिस फोर्स। कोरिलिस फोर्स में क्या होता है? कोरिलिस फोर्स क्या करती है? कोरिलिस फोर्स बेंड कर देती है डायरेक्शन ऑफ सरफेस करंट्स टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ड्यू टू कोरिलिस फोर्स की वजह से जो करंट फ्लो होता है, current flow in a clockwise direction in northern hemisphere and in anti-clockwise direction in the southern hemisphere, ठीक है। अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स, ये तीसरा फैक्टर है। एयर प्रेशर जो है, एयर प्रेशर जो है ओशनिक वाटर पे वो कॉज करता है ओशनिक करंट्स को थ्रू डेंसिटी वेरिएंस। द वाटर मूव्स एज सरफेस करंट फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई वाटर लेवल टू लो वाटर लेवल एरियाज, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा कि जो सरफेस करंट जो होगी वो हाई वाटर एरिया से, मतलब लो प्रेशर एरिया से टू लो वाटर लेवल एरियाज पे जाएगी, ठीक है। हाँ, जैसे कि भी एग्जांपल है, गल्फ स्ट्रीम इन अटलांटिक मूव्स इन नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी फोर्सेस क्या क्या होती है। डिफरेंस इन दी वाटर डेंसिटी, इट अफेक्ट दी वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करती है। एज डेंसर वाटर टेंड टू सिंक
while the relatively lighter water tend to rise. ठीक है. Difference in salinity. Areas with higher salinity will have greater density than the area with lower salinity. ठीक है. The denser water जो होता है वो sink डूब जाता है. Denser water sink and less saline water जो होता है वो move toward greater saline water as surface current. जो लेस saline होगा वो हाई saline एरिया पे चला जाएगा और जो डेंसर वाटर होगा वो नीचे बैठ जाएगा. ठीक है. अब इसका रोल देखेंगे. रोल ऑफ ओशन करंट इन फिशिंग इंडस्ट्री. ओशन करंट से क्या होता है, हैज गिवन राइज टू फिश रिच रीजन्स. ठीक है. द प्लेस वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट जब मिलती है हैव एविडेंट ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन. ठीक है. विच इज फूड ऑफ फिश. दीज एरियाज आर बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड. ये जो एरियाज होते हैं जहाँ पे ये दो करंट्स मिलती है ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं वर्ल्ड में. जैसे कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट ओसाइयो एंड वार्म करंट कुरोशिहो नियर जापान हैज गिवन राइज टू रिच फिशिंग ग्राउंड्स. ठीक है. अदर जो प्रोमिनेंट फिशिंग ग्राउंड्स है वर्ल्ड में वो कौन कौन से हैं. ग्रेट बैंक ऑफ न्यूफाउंडलैंड जहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मीट करती है कोल्ड लैब्राडोर करंट से. एंड द सी अराउंड आइसलैंड. ठीक है. वेयर द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मीट द सी अराउंड आइसलैंड में क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मीट करती है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट से. ठीक है. तो अब इसके देखेंगे नोट्स बनाएंगे अब इसके क्या क्या है. सबसे पहले जो इसका आंसर होगा, सबसे पहले ओशन करंट्स. वह जो ओशन करंट्स होंगे वो कॉन्टिन्यूस, प्रेडिक्टेबल, डायरेक्शनल मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर. ठीक है. डायरेक्शनल मूवमेंट होगी सी वाटर की लाइक रिवर, जैसे रिवर फ्लो हो रही हो कुछ. ठीक है. देख दो डायरेक्शन में होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. बाय इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फोर्सेस. फोर्सेस कौन सी होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी. ठीक है. अब तो सबसे पहले प्राइमरी फोर्सेस में पहला आता है टेम्परेचर. सबसे पहले सोलर से हीटिंग होगी जिसकी वजह से वाटर एक्सपैंड होगा. जो सन होगा वो हीट प्रोवाइड करेगा इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में, देन पोलर रीजन में. जो वार्म इक्वेटोरियल करंट है वो टुवर्ड्स पोलर मूव करेंगे, वाइल जी जो पोलर के हैं वो इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे. ठीक है. जो टेम्परेचर है डिक्रीजेस विद डेप्थ,
एज सनरेज जो होती है कैन नॉट पेनिट्रेट डीप ओशनिक वाटर एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर कोज करंट्स। ठीक है, दूसरा क्या है, कोरिलिस फोर्स। पहला पॉइंट ये, दूसरा, तीसरा। ठीक है, कोरिलिस फोर्स ये ये क्या करता है, बेंड द डायरेक्शन ऑफ सरफेस करंट। ठीक है, ये कर देता है राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, कोरिलिस फोर्स की वजह से राइट होगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेफ्ट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, हाँ, अब तीसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्लानिटरी विंड्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्लानिटरी विंड्स। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डेंसिटी वेरिएशन हो जाएगी। जो वाटर होगा वो मूव फ्रॉम सरफेस करंट, मूव एज सरफेस करंट फ्रॉम वाटर, मूव एज करंट की तरह हाई वाटर लेवल। हाई वाटर लेवल मतलब लो प्रेशर से थ्रू लो वाटर लेवल तक, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहां तक जाएगा ये। प्लेनेटरी विंड्स क्या करती है, ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करती है ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में प्लेनेटरी विंड्स मूव होगी उसी डायरेक्शन में ये इन्फ्लुएंस होती है। एग्जांपल जैसे कि गल्फ स्ट्रीम इन एंड Atlantic Ocean moves in northeastern direction due to westerlies। ठीक है, अब सेकेंडरी फोर्सेस कौन कौन सी है, सबसे पहला आ गया डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी। वाटर डेंसिटी में डिफरेंसेस, इससे क्या होगी, वर्टिकल मोबिलिटी होगी। ठीक है, वर्टिकल मोबिलिटी होगी ओशन करंट से, डेंसर सिंक हो जाएगा। ठीक है, तो जो लाइटर वाटर होगा वो राइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, डिफरेंस इन सैलिनिटी। ठीक है, हायर सलाइन जो होगा उसके बाद हायर डेंसिटी होगी। ठीक है, तो हायर डेंसिटी होगी तो वो सिंक करेगा, लेस सलाइन होगा उसके पास लेस डेंसिटी होगी। ठीक है, तो वो राइज होगा। ठीक है, अब इसका रोल देखेंगे, रोल क्या क्या है। भाई ये जो करंट्स होते हैं गिव राइज टू फिश रिच रीजन, जहाँ पे ये मीट करते हैं, यहाँ पे एबुडेंट, जो कि ये फूड का फिश होता है, फिश का फूड होता है। बेस्ट फिशिंग ग्राउंड,
ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? ओयाशियो, ये कोल्ड है, और एक ये होगा कुरोशियो, ठीक है, ये वार्म है। ये जापान के होते हैं, रिच फिशिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है ये। ग्रेट बैंक ऑफ न्यू फॉललैंड फाउंडलैंड, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कोल्ड कोल्ड लैब्राडोर से वो होती है सी अराउंड आइसलैंड के अराउंड के होते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, मीट करती है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट से। ठीक है भाई, अब इसका वो दोबारा से हम लिखेंगे इसको आंसर अपने उसमें, इस तरह इसकी रिवीजन करेंगे, एक बार इसको याद करेंगे। सबसे पहले ओशन करंट्स क्या होते हैं? ओशन करंट्स जो होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रेडिक्टेबल डायरेक्शनल मूवमेंट होती है किसकी? सी वाटर की। लाइक अ रिवर जो अगर किसमें ओशन में फ्लो कर रही है, ये इसकी दो डायरेक्शन होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये ओशन मूवमेंट के लिए कॉज्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ज़्यादातर इसमें दो टाइप के फैक्टर जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इसको, जैसे प्राइमरी फोर्सेस एंड सेकेंडरी फोर्सेस। ठीक है, प्राइमरी फोर्सेस में क्या क्या आ गया? सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से हीटिंग होती है जिसकी वजह से वाटर एक्सपैंड होता है। सन प्रोवाइड करता है हीट टू इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में, देन द पोलर रीजन। वार्म इक्वेटोरियल करंट्स जो होते हैं, जो वो जो होते हैं वो टुवर्ड पोल मूव करते हैं, और हैवी कोल्ड वाटर जो होते हैं वो टुवर्ड इक्वेटर मूव करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज होता है डेप्थ के साथ साथ, जैसे कि सनरेज जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाते डीप ओशियनिक वाटर में, इसलिए ऊपर ही ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये ओशियन करंट चलते रहते हैं। ठीक है, अब आता है कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स कैसे अफेक्ट करता है इसको? कोरियलिस फोर्स बैंड कर देता है इसकी डायरेक्शन ऑफ सरफेस करंट्स। सरफेस करंट्स की जो होती है डायरेक्शन उसको बैंड कर देता है, राइट इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए कोरियलिस फोर्स की वजह से जो करंट्स जो फ्लो होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लेनेटरी विंड्स कैसे अफेक्ट करती है? एयर प्रेशर जो होगा ओशनिक वाटर पे वो कॉज करेगा किसको? ओशनिक करंट्स को डेंसिटी वेरिएशंस में वो कर देगा। जो वो करंट्स होगी वो कहाँ से कहाँ मूव करे, जो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हाई वाटर लेवल एरिया से, जहाँ पे लो प्रेशर है वहां से लो वाटर लेवल एरिया पे जहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ठीक है, प्लेनेटरी विंड्स भी अफेक्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स, जो कि मोस्ट ओशन करंट जो होते हैं वो कहाँ पे फ्लो होते हैं? फॉलो द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स। जैसे गल्फ स्ट्रीम में, अंटार्कटिका में, अटलांटिक में, वो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। Secondary forces difference in density, water density, vertical mobility of ocean currents affect करती है। Denser waters tend to sink while relatively lighter water rise. Salinity भी difference in salinity, area with high salinity greater density होगी उसकी with then the area of lower salinity. Denser water जो होगा वो sink हो जाएगा, less saline water जो होगा वो greater saline area पे जाएगा। ठीक है, अब रोल ऑफ ओशन करंट्स देखेंगे हम फिशिंग इंडस्ट्री में क्या क्या है। ओशन करंट्स हैव गिव राइज टू फिश रिच रीजन्स। ठीक है, फिश रिच रीजन्स को वो करते हैं जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं, वहाँ पे एविडेंट ग्रोथ होती है प्लैंक्टन की, जो कि फूड है फिश का। इन एरियाज में क्या होती है? बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं वर्ल्ड में, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ ओयाशियो और वार्म करंट कुरोशियो जापान में। रिच फिशिंग ग्राउंड्स मिले हैं, जैसे कि और फिशिंग ग्राउंड्स कहाँ कहाँ पे है, जैसे कि ग्रेट बैंक ऑफ न्यू फाउंडलैंड जहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मीट करती है कोल्ड लैब्राडोर करंट से। ठीक है, एरिया अराउंड आइसलैंड जहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मीट करेगी ईस्ट ग्रीनलैंड करंट से। तो अभी हम इसकी आंसर राइटिंग करेंगे। गल्फ स्ट्रीम इन अटलांटिक
The first question: what are the forces that फिर आप इसका आंसर लिखेंगे?
ठीक है, अभी ये हो गया। अभी इसका हम एक बार एग्जांपल रिवाइज करेंगे। एग्जांपल याद नहीं आए थे मेरे को, तो एक बार इसके हम दोबारा से एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेंगे, इसमें हमने सही सही लिखा है ना। ये सारा प्राइमरी फोर्सेस होगा, टेम्परेचर, कोल्डेस्ट फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लानिटरी विंड्स। हाँ, सबसे पहला आता है एक गल्फ स्ट्रीम इन अटलांटिक, जो कि मूव करती है नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। ठीक है, दूसरा था कोल्ड करंट जो थी ओयाशियो, वो मीट करती थी वार्म करंट से कुरोशियो। ठीक है, ये नियर जापान। ठीक है, रिच फिशिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते थे। एक था ग्रेट बैंक्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड, जहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मीट करती थी कोल्ड लैब्राडोर करंट से। सी अराउंड आइसलैंड, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मीट करती थी ईस्ट ग्रीनलैंड करंट से। देख, सबसे पहले गल्फ स्ट्रीम इन अटलांटिक जो होती थी, और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव होती थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। ठीक है,
इफेक्ट ठीक है। और ये ओयाशियो कुरोशियो ये जापान में, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कोल्ड लैब्राडोर करंट ये न्यू फाउंडलैंड में, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ईस्ट ग्रीनलैंड करंट ये हो गया आइसलैंड में। ठीक है, अब एक मिनट एक चीज और देखेंगे। ठीक है, चलो तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है अब हमारा? डिस्क्राइबिंग द distribution of rubber producing country indicate the major environmental issues faced by them। मतलब हमें इसमें क्या करना है, हमें एक तो ये दो चीजें बतानी है इसमें। एक तो रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहाँ कहाँ पे है, और उसमें इंडिकेट करना है कि भाई रबर प्रोड्यूसिंग से भाई क्या क्या मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं, वो देखना है हमें। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है। रबर इज अ upright फास्ट ग्रोइंग अपराइट ट्रॉपिकल ट्री क्रॉप। ठीक है, क्या हो गया इसमें, क्या है ये फास्ट ग्रोइंग है, जल्दी उगती है, अपराइट मतलब बिल्कुल सीधी जाती है, ट्रॉपिकल ट्री क्रॉप मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में होती है, ट्री ट्री क्रॉप है ये, विच इज मेनली कल्टिवेटेड फॉर लेटेक्स। किस चीज के लिए ज्यादातर यूज होती है? लेटेक्स के लिए। अब मिल्की मिल्की प्लांट लिक्विड है ये, which serves as basis for various rubber products। बहुत सारे रबर प्रोडक्ट्स में इसका यूज होता है। इट इज ग्रोन एज अ कैश क्रॉप की इसके यूज में हम इसको ग्रो करते हैं। एशिया जो है वो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, जिसमें 91% वो होती है, फॉलोड बाय अफ्रीका। इसके बाद कौन सी होती है? अफ्रीका। थाईलैंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। थाईलैंड जो है सबसे लार्जेस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलेगी सबसे पहली बात तो ये, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन जो रिक्वायर्ड है टेम्परेचर की वो अबव 25 डिग्री है, विद मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम एरिया आर द टॉप 3 रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। डिस्पाइट रबर बीइंग नेटिव टू अमेज़न बेसिन, 90% ऑफ सप्लाई कम्स फ्रॉम एशिया। डिस्पाइट जो रबर बीइंग नेटिव टू, भाई इसके बावजूद कि भाई जो रबर जो है वो नेटिव है अमेज़न बेसिन के, 90% जो सप्लाई है वो एशिया से आता है। मोस्ट सिंथेटिक रबर, जो ज़्यादातर सिंथेटिक रबर जो होते हैं, इज प्रोड्यूस इन यूनाइटेड स्टेट, जापान, रशिया एंड कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होती है फेस्ड बाय रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज? सबसे पहले केमिकल्स, यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स causes serious environmental impact। large amount of chemical use होता है। biodiversity loss, rubber production leads to reduced total carbon biomass। दूध ले आओ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी दूध दे दो। शेक बना देना प्लीज।
तीसरा कंज्यूम वाटर एंड एनर्जी। रबर क्रॉप जो होता है वो डिप्लीट करता है ग्राउंड वाटर को, ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन इन स्टेट लाइक केरला रबर प्लांटेशन हैज रिप्लेस द नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन को रिप्लेस कर दिया उसने। सॉइल फर्टिलिटी, रबर प्लांटेशन से डज नॉट हेल्प इन replenishment of soil nutrients and result in loss of nutrients of in the soil। ठीक है, मतलब वो क्या हेल्प नहीं करता किस चीज में, रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स पे, जो कि रिजल्ट कर देता है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम रबर फैक्ट्री डिप्लीट द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड cause water pollution, posing a threat to aquatic life। posing, ठीक है, मतलब क्रिएटिंग अ थ्रेट। Deforestation, natural rubber leads to deforestation. It is expected to be the leading cause of deforestation in mainland Southeast Asia near the future। It is, ठीक है, मतलब हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं द लीडिंग कॉज, मतलब मेन इंपॉर्टेंट कॉज जो है डिफोरेस्टेशन है किसमें, इन मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया इन नियर फ्यूचर। कंक्लूजन क्या है, अ स्ट्रॉन्ग विलिगेंट अप्रोच। विजिलेंट, विजिलेंट अप्रोच जो है, ठीक है, एट प्रेजेंट मतलब जो सबसे जो अलर्ट और केयरफुल जो है, विजिलेंट अप्रोच चाहिए हमें, जो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्शन ऑफ रबर pollutes pollutes air, water, odor, and plays a vital role in climate changes too। It's high time it's high time the international organization should start discussing topic। ये हाई टाइम हो गया बिल्कुल। Something should done earlier and must done now। ठीक है, इट्स हाई टाइम कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट डिस्कसिंग टॉपिक विच टुडे seem irrelevant but has greater impact in future।